Good morning, everybody. Now see, next subject, construction planning and management. Construction planning and management. Right. Content of this topic is Chapter 1, Basic Concepts of Project Management. And Network Rule. Right? Basic Concepts of Project Management and Network Rule. Chapter 2, PERT Analysis. Chapter 3, CPM Analysis. Right? Chapter 4, Crashing of a CPM network. Chapter 5, Updating of a CPM network. Chapter 6, Resource Allocation, resource leveling, resource allocation and resource leveling. And Chapter 7, AON network, and ladder network. Right? Chapter 8, Engineering Economy, Chapter 9, Construction Equipment. Right? Chapter 10, Estimating Costing, and Rate Analysis. Estimating, Costing, Rate Analysis. Chapter 11, Quality Control, Safety and Welfare. And Chapter 12, Contracts and Tenders. Right? Okay. So just see one by one all those topic. These are the content you can write. Okay. So now analysis is like this. Analysis is like this. In GATE, generally 2 to 3 marks.
engineering services, engineering services, objective 8 to 10 question, and mains, that is conventional, 60 to 75 marks. 60 to 75 marks, right? So this is the description of this subject, right? So now come on the first topic, chapter 1. Chapter 1. Basics of project management and network rule. Right. First, write the definition of project management. Project management. Right. It deals with material and human resources both for satisfactory completion of a project. For satisfactory completion of a project. So यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस बोथ फॉर सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट. आता हूँ इस पॉइंट पे. एवरी प्रोजेक्ट वेदर इट इज बिग और small has 3 objectives. Every project, whether it is big or small, has 3 objectives. First, it should be completed. It should be completed in minimum of capital investment. It should be completed in minimum of capital investment. दूसरा, it should use available manpower and material resources both. It should use available manpower and material resources both as far as possible without delay in project. और तीसरा है, थर्ड, it should be completed in minimum time. तो यहां पर हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे, दैट इज द मिनिमम टाइम. और यहां पर है इट शुड यूज अवेलेबल मैन पावर एंड मटेरियल रिसोर्सेस बोथ, राइट. और यहां पर है मिनिमम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे, अंडरलाइन पॉइंट्स हैं 3 पॉइंट्स.
पहले हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट डील्स विथ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बोथ फॉर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो जैसे मान लो कि कोई भी प्रोजेक्ट हमें हैंडल करनी है, अगर मान लो हमें एक रोड बनानी है, तो उस रोड को बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि जो मटेरियल्स चाहिए, जैसे आपको सैंड चाहिए, सीमेंट चाहिए, राइट, पीसीसी अगर बना रहे हैं तो, और अगर आप उसमें डबल वार का प्रोविज़न कर रहे हैं तो वार भी चाहिए आपको, रॉड्स भी चाहिए। तो सिर्फ मटेरियल्स इकट्ठा कर लेने से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए मैन पावर भी चाहिए। तो कुछ लेबर जो होते हैं वो अर्थवर्क में एक्सपर्ट होते हैं, वो अर्थवर्क का काम कर लेंगे। जो मान लो जीएसबी ग्रेनुलर सब बेस में एक्सपर्ट होते हैं, वो ग्रेनुलर सब बेस का काम कर लेंगे। और जो पीसीसी की ढलाई करने में एक्सपर्ट होते हैं, वो ढलाई का काम करेंगे। तो हर चीज़ों के लिए एक अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, राइट। जैसे आप घर ही बनाते हैं, तो घर बनाते हैं उसमें डिफरेंट स्किल्स के लेबर लगते हैं हमारे। ढलाई का काम कोई और करता है, ब्रिक वॉल का काम कोई और करता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम कोई और करता है। तो ये उनकी स्पेसिफिकेशंस होती है। सो फॉर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट 2 बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज मटेरियल रिसोर्सेज एंड मैन पावर रिसोर्सेज। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, राइट, जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन में लिख रखा है आपके लिए। देखिए यहाँ पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट डील्स विद मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बोथ फॉर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। Every project, whether it is big or small, has 3 objectives. It should be completed in minimum of capital investment. मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, आप मान लो कि यहाँ पर एक ये विलेज है, दिस इज विलेज ए, राइट, दिस इज विलेज ए, और यहाँ पर ये दूसरी विलेज है, दिस इज विलेज बी, ठीक है, दिस इज विलेज बी। इन दोनों विलेज में कोई भी इंटरनल कनेक्टिविटी नहीं है। आप ये कह सकते हो कि ठीक है, इन दोनों को हमें इंटरनल कनेक्टिविटी देनी है। तो इंटरनल कनेक्टिविटी ये हमने इसको दिया, एक रोड बनाकर हमने इसको दिया, राइट, दिस इज द इंटरनल रोड, दिस इज द विलेज रोड, विलेज रोड। अब सबसे पहले जो पार्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं टॉपिक में, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं यहीं पे डिस्कस कर दूंगा। आपको पढ़ाते पढ़ाते सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएगी यहीं पे। जैसे देखिए आप, मैंने क्वालिटी कंट्रोल की बात करी है, सेफ्टी की बात करी है, बस इन्हीं चीज़ों के थ्रू मैं बता दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट्स भी बता दूंगा ऐसे, और पीपीटी पे भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। रही बात इनकी, जो आपकी मेन टॉपिक है, PERT, CPM, क्रैशिंग, अपडेटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन एंड AON नेटवर्क, राइट, एंड फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज स्पेशली इंजीनियरिंग इकोनॉमी। तो अभी थोड़ी देर में इस पर भी आते हैं, इस पर लिखेंगे कि कौन सी टॉपिक गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी ES के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कि इनको इंटरनल कनेक्टिविटी देनी है हमें, इस रोड को, सॉरी इन दोनों विलेजेस को। अब बिफोर गेटिंग द इंटरनल कनेक्टिविटी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो काम होता है हमारा, हम डेस्क स्टडी करते हैं, राइट। उसमें क्या होता है कि हम इन दोनों विलेजेस को देखते हैं, इनके मैप्स को उठाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों विलेज जो हैं, ये राजस्थान का कोई विलेज है या बिहार का कोई विलेज है, इसको हम देखते हैं। मैप स्टडी के थ्रू इनको क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर बाकी लैंड्स अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर लैंड्स अवेलेबल है तो क्या इनको कनेक्टिविटी मिल सकती है। तो उन कनेक्टिविटी की एबिलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं, और अगर मान लीजिए वो मिल सकती है तो डेस्क स्टडी का काम हमारा खत्म हो जाता है। फिर हम प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, राइट। अब सर्वे करने के बाद हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक हम कनेक्टिविटीज़ को दे सकते हैं। उसके बाद हमारा काम आता है एस्टिमेट बनाने का, एस्टिमेटिंग का काम आता है, जो आज के डेट में मॉडर्न भाषा हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके पहले हम लोग एस्टिमेट बनाते थे, एक रफ आइडिया दे देते थे कि ऐसे बनेगा, लेकिन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारी एनालिसिस होती है। हाइड्रोलॉजी की भी एनालिसिस होती है कि इस जगह का रेनफॉल कितना है। अगर ये हाई रेनफॉल एरिया है, राइट, अगर ये हाई रेनफॉल एरिया है तो यहाँ पर हम बिटुमिनस रोड नहीं बनाएंगे। आई मीन टू से कि यहाँ पर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट का निर्माण नहीं करेंगे। और अगर ये हाई रेनफॉल एरिया है तो फ्लेक्सिबल पेमेंट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम रिजिड पेमेंट बनाएंगे, मीन्स PCC रोड बनाएंगे। और अगर ये मॉडरेट और लो रेनफॉल एरिया है तो PCC रोड बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप बिटुमिनस रोड बना दीजिए, करेक्ट। अब जैसे हमने आपसे आइडिया मांगा, आपके पास 5 इंजीनियर हमारे पास हैं, पांचों ने डिफरेंट आइडिया दिया। किसी ने बोला कि सर यहाँ पर 4 लाइन रोड बना देते हैं, किसी ने बोला सर यहाँ पर 8 लाइन रोड बना देते हैं, सर यहाँ पर 2 लाइन बनाते हैं विथ रंबल रफ स्ट्रिप्स, सर यहाँ पर 2 लाइन बनाते हैं विथ रोड मार्किंग एंड साइड लाइट हम लोग पूरा प्रोविजन करेंगे, सेंट्रल लाइट और साइड लाइट दोनों प्रोविजन करेंगे रोड पे। तो देखो, जितनी ज़्यादा सोच इसमें डेवलप करोगे, इसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारा अल्टीमेट एम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या है, पहला ये देखो, इट शुड बी कंप्लीटेड इन मिनिमम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप यहाँ पर 4 लाइन रोड बनाना चाहते हैं तो 4 लाइन रोड की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि 2 विलेज हैं,
इन दो विलेज को कनेक्टिविटी दोगे, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कितनी होगी, 1000 पॉपुलेशन होगी, 500 दोनों विलेज की, तो 1000 के लिए 2 लेन रोड भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल लेन रोड इज सफिशिएंट, राइट। तो अब यहां पर क्या करते हैं, जैसे ये सब रोड बनाई जाती है, इस तरीके से विलेज को कनेक्टिविटी दी जाती है सिंगल रोड के जरिए। वी हैव वेरियस स्कीम्स अंडर द गवर्नमेंट्स ऑफ PMGSY, MMGSY, NABRAD, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, एंड देयर आर सो मेनी स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट आज के डेट में रन करा रही है। तो हमें सिंगल कनेक्टिविटी इनको देनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 लाइन रोड ना बनाने की जगह हम यहां पर साइड मार्किंग कर देंगे इस तरीके से, ताकि ठंड के सीजन में जब फॉग ज्यादा हो जाती है, विजिबिलिटी 0 हो जाती है, तो बंदे क्या करेंगे, इस एरो मार्किंग के जरिए यहां से वहां पहुंच सकते हैं। अब जो है इसको अगर आप सिंगल लेन रोड बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट जो आएगी, अगर आप बिटुमिनस पेवमेंट बना रहे हैं तो इसकी, बिटुमिनस को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, तो इसकी 1 किलोमीटर की कॉस्ट 70 लाख रुपए आती है, राइट। और अगर हम PCC पेमेंट बना रहे हैं, PCC मैं लिख देता हूं यहां पर फ्लेक्सिबल, राइट, फ्लेक्सिबल सिंगल लेन रोड, और अगर इसको आप डबल लेन और ट्रिपल लेन करते हैं, डबल लेन रोड करते हैं, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच में। फिर उसके बाद अगर आप PCC रोड बनाते हैं तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 1 CR। अगर इस रोड की लेंथ है 1 किलोमीटर तो ये 1 किलोमीटर की कॉस्ट 70 लाख रुपए जाती है, राइट। तो अभी हमने इसको क्या किया, 70 लाख रुपए में इस रोड को बना दिया, और आप डबल लाइन बनाते तो 5 करोड़ में बनता। तो हमारा पर्पस किससे सॉल्व हो रहा है, 70 लाख से या 5 करोड़ से? हमारा पर्पस 70 लाख से सॉल्व हो रहा है, तो हम इस काम को मिनिमम में करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया ये हमारा पॉइंट। सो मिनिमम कॉस्ट वाला टाइम पार्ट हमारा जो है क्लियर हो गया। इट शुड बी कंप्लीटेड इन मिनिमम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरा है, इट शुड यूज अवेलेबल मैन पावर एंड मटेरियल रिसोर्सेज बोथ एज फार एज पॉसिबल विदाउट डिले इन द प्रोजेक्ट। अब क्या है देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए इस रोड को जब हम बनाते हैं, अभी मैं WBS पढ़ाऊंगा आपको, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसमें मैं इसको डिस्कस भी करूंगा। तो देखिए इस रोड को जैसे हम बनाते हैं तो एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अर्थवर्क का काम करते हैं, ठीक है। अब अर्थवर्क का काम तो अर्थवर्क एक्सकावेटर कर देगा, इधर से मिट्टी काटा, इधर से मिट्टी काटा, मिट्टी काट के डंप कर दिया, उसको लेवल में भी वही कर देगा, लेकिन उसमें लिटिल बिट कॉम्पैक्शन करनी होगी, बाय मैनुअल मींस बाय स्टैटिक रोलर, बाय न्यूमेटिक रोलर, उसको कॉम्पैक्शन करनी होगी। तो अगर हमें मान लो कि मैनुअल लेबर से काम कराना है, और मैनुअल लेबर आज हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जो लेबर है वो आया नहीं, उसकी तबीयत खराब है, राइट। तो मैनुअल लेबर अगर हमको इस गांव में मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं, तो उनसे हम वो काम करा सकते हैं। जैसे मान लो साइड में, जैसे हम जब गए फील्ड में तो साइड में दोनों तरफ घास है, हैवी घास है, प्लांट से बड़े बड़े, उसको कटवाने की जरूरत है। अब उसको कटवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स का स्किल्ड लेबर नहीं आया, तो उसके भरोसे आज हम काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वर्क हमारा अगर एक दिन भी डिले हो गया तो हम जो है अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट को ऑन टाइम खत्म कर दें, और 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 2 करोड़ 99 लाख रुपए में ही उसको खत्म कर दें। हम पैसा बचाना और टाइम बचाना, ये दोनों हमारा अल्टीमेट एम होता है, राइट। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या है कि वहां पर जो भी बंदे अवेलेबल हैं उनको आप यहां से उठा लो, हायर कर लो और काम करा लो। अब अगर मटेरियल्स की कमी हो गई, अगर मान लो आप PCCD की ढलाई कर रहे हो और 100 बैग सीमेंट आपका कम पड़ गया आपके पास सीमेंट, तो फिर जो आप पहले सीमेंट के लिए अल्ट्राटेक को, आपको हमने बताया था कि आप अल्ट्राटेक से सीमेंट लेंगे, अल्ट्राटेक को आप ऑर्डर करेंगे, वो 10 दिन के बाद पहुंचाएगा, 10 दिन से प्रोजेक्ट हमारा डिले हो जाएगा। सो बेटर है कि लोकल में कहीं अगर अवेलेबल है सीमेंट, देन यू कैन परचेज ऑन लिटिल बिट हाई कॉस्ट, आप कॉस्ट थोड़ा बढ़ा के ही परचेज कर लो, बट प्रोजेक्ट को वहां पर डिले मत होने दो। बहुत सारे स्कोप होते हैं हमको रेट को कम करने के, वो हम लोग आगे धीरे धीरे कर लेंगे इसमें, राइट। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि अवेलेबल मैन पावर और मटेरियल, इन दोनों को हमें क्या करना है, यूज कर लेना है। इट शुड बी कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम। अब जैसे देखिए मैं आपसे पूछूं कि कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो अब आप कह देंगे, देखिए मिनिमम टाइम से मेरा यहां पर बहुत ही गहरा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है अभी बताता हूं आपको। मिनिमम टाइम देखिए ये क्या है एग्जैक्टली, कि मैं आपसे पूछूं अगर कि कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हो, तो कोई बंदा बोलेगा सर 3 साल, कोई बोलेगा 2 साल, कोई बोलेगा 9 महीने, कोई बोलेगा 3 महीने। तो देखो बहुत फ्लक्चुएशंस हो जाती है इसमें। एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए जिसमें कि आप बिना परेशान हुए इस रोड को बहुत कंफर्टेबल तरीके से कंप्लीट कर पाएं आप। तो वो टाइम जो है विलेज रोड के 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के लेंथ के लिए 9 महीने का टाइम फिक्स किया गया है। ये स्मॉल प्रोजेक्ट में काउंट आता है, बिग प्रोजेक्ट के लिए हम 3 साल तक का टाइम देते हैं, राइट। तो अब यहां पर क्या है कि टाइम जो आप दोगे, मिनिमम टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ये टाइम मिनिमम और ऑप्टिमम मैं यहां पर लिख देता हूं, आप अपने नोट्स में भी लिख के रखोगे ऑप्टिमम टाइम, ठीक है। इसकी आगे आपको जरूरत पड़ेगी ऑप्टिमम टाइम की, ठीक है। तो देखो यहां पर एग्जैक्टली क्या है, मिनिमम टाइम से क्या मतलब है।
इसको वैसे टाइम में कंप्लीट करो, मिनिमम टाइम में, जिसमें कि बिना परेशान हुए आराम से इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया जा सके 4-5 घंटे 6 घंटे वर्क करके पर डे, राइट। अब यहाँ पर ऑप्टिमम टाइम का क्या मतलब होता है और मिनिमम टाइम का क्या मतलब होता है। जब हम डीपीआर बनाते हैं ना, तो मैं ये बात कर रहा था मिनिमम टाइम और ऑप्टिमम टाइम की। तो मिनिमम टाइम का मेरा मतलब ये होता है कि ये प्रोजेक्ट कम से कम समय में कंप्लीट हो जाए। अब देखिए ऑप्टिमम टाइम का क्या मतलब होता है, जहाँ पर कॉस्ट जो है हमारी प्रोजेक्ट की सबसे कम हो, उस टाइम को हम ऑप्टिमम टाइम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी तो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया आपको, जब मैं आगे क्रैशिंग पढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होगी। तो एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस प्रोजेक्ट को मिनिमम टाइम 9 महीने का दिया गया, 9 मंथ का, और 9 मंथ में कॉस्ट हमारी है 70 लाख रुपीज़। लेकिन इसी प्रोजेक्ट को अगर हम 8 महीने में कंप्लीट कर लें और कॉस्ट हमारी हो जाए 65 लाख रुपीज़, तो ये अच्छी बात है हमारी कि समय भी हमारा बच गया और पैसे भी हमारे कम लगे। लेकिन इसी प्रोजेक्ट को अगर आप 3 महीने में करेंगे तो कॉस्ट हो सकता है 1 CR प्लस आपका लग जाए। पता है क्यों? क्योंकि कम समय में करेंगे आप तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, डे नाइट आपको वर्क करना पड़ेगा। नाइट शिफ्ट में लेबर के चार्जेस अलग होंगे, डे शिफ्ट में अलग होंगे, मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी अगर, तो आपको हाई रेट पे परचेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्रैशिंग का पार्ट होता है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन, राइट। सो नाउ यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, देयर आर 3 फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट लिखते हैं, देयर आर 3 phases of project management. First, project planning. Second, project scheduling, and third, project controlling. तो वन बाय वन इन तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके ओके, सो देयर आर 3 phases ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट: प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल ऑफ these. So first is project planning. First is project planning. Actually this is most important phase of project management, right? This is most important phase of project management. Planning involves defining the objectives of a project, arrangement of jobs that may be performed, listing of jobs, listing of material, arrangement of materials, etc., etc. So here we will write, this is the most important phase of project management. Phase of project management. Planning involves defining the objectives of a project, objectives of a project, arrangement of jobs, arrangement of jobs that must be performed, arrangement of jobs that must be performed, and determining gross requirements for and determining gross requirements for materials and determining gross requirements for materials, manpowers, etc., etc. Right? It also prepare estimate of cost,
prepare estimate of cost. It also prepare estimate of cost and durations for various jobs, और आप एक्टिविटीज़ भी इसे लिख सकते हैं, जॉब्स और एक्टिविटीज़ दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड, that must be performed for satisfactory completion of a project, for satisfactory completion of a project, right? तो देखिए एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर मैंने लिखा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए प्रोजेक्ट, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए प्रोजेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड. इट्स अ वेरी फंडामेंटल पॉइंट. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए प्रोजेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड एंड डिटरमाइनिंग ग्रॉस रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल्स एंड मैन पावर्स. It also prepare estimate of cost and durations for various activities or jobs that must be performed. Right. तो देखिए exactly क्या होता है, ये पार्ट होती है एस्टिमेटिंग की. अब यहाँ पर ये जो वर्ड इसने यूज किया हुआ है, देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट्स की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे मान लीजिए हम एक रोड बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाए वहाँ से, राइट, टू फैसिलिटेट द पीपल. एंड अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड. अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे अगर हमें मान लीजिए कि बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, अगर हमें मान लीजिए ये बिल्डिंग बनानी है, राइट, आप रख लीजिए डबल स्टोरी ये बिल्डिंग बनानी है हमें. तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन करना पड़ेगा. फाउंडेशन के बाद हम ग्रेड बीम का काम करेंगे. ग्रेड बीम के बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉलम इरेक्ट करेंगे. कॉलम इरेक्ट करने के बाद हम स्लैब और बीम की कास्टिंग करेंगे, राइट. तो अब यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं, अब मान लीजिए स्लैब की कास्टिंग अगर हमें करनी है तो एट एनी कॉस्ट स्लैब की कास्टिंग एक दिन में ही होनी चाहिए. तो यहाँ पर क्या है कि बिफोर कास्टिंग ऑफ ए स्लैब कॉलम, दिस इज द कॉलम, दिस इज द कॉलम, दिस इज द कॉलम, दिस इज द कॉलम एंड दिस इज द कॉलम, राइट, एंड दिस इज द स्लैब हेयर. ये स्लैब की कास्टिंग है. तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारा कि फाउंडेशन वर्क क्लियर होनी चाहिए, राइट. फाउंडेशन वर्क पहले हमारी क्लियर होनी चाहिए. एंड आफ्टर फाउंडेशन हम क्या करेंगे, फुटिंग के बाद कॉलम को इरेक्ट करेंगे, राइट. और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म वर्क, शटरिंग एंड सेंटरिंग करेंगे. एंड देन बीम और स्लैब की हम कास्टिंग करेंगे, राइट. तो एग्जैक्टली ये चीजें क्या है कि एक के बाद एक हमारी एक्टिविटीज आएगी. ऐसा नहीं कि पहले आप बीम और स्लैब की कास्टिंग कर देंगे, फिर कॉलम करेंगे और लास्ट में फाउंडेशन करेंगे, ऐसा नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, प्लानिंग से. ये हमारे एस्टिमेट का पार्ट होता है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है. अब मान लीजिए मैसन्स जो राजमिस्त्री होते हैं, जो स्लैब की कास्टिंग के लिए स्पेशलिस्ट हैं, वो स्लैब की कास्टिंग वही कर सकते हैं, उसको आप फाउंडेशन वर्क में नहीं रख सकते हैं. तो मान लीजिए कि फाउंडेशन वर्क में हमें 4 टन बार की ज़रूरत है और मान लीजिए 25 लेबर्स की ज़रूरत है. तो हम इतना ही लाएंगे इन स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. लेकिन उसके बाद अगर मान लीजिए कि जब हमारी कास्टिंग हो रही है तो हमें 4 की जगह पे 100 लेबर्स की ज़रूरत है और 25 मैसन्स की ज़रूरत है, हमें जिसको राजमिस्त्री कहते हैं, इनकी ज़रूरत है. तो ये हम उस समय प्रोवाइड करेंगे. लेकिन फाउंडेशन के समय में अगर आप इनको लाएंगे तो इनको बिठा के आपको पेमेंट करना पड़ेगा. तो कॉस्ट आपका क्या होगा, बहुत आगे भाग जाएगा, राइट. तो ये आप सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे. तो यहाँ से क्या है, प्लानिंग की जो इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होती है, वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंस. सो इंपॉर्टेंस इज व्हाट, इंपॉर्टेंस. It provides directions. It provides directions, right. और दूसरा होगा इसका इंपॉर्टेंस का जो इट प्रोवाइड्स
what direction, and it provides performance standards. Performance standards. Performance standards, right? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तब पता चलेगा जब हम देखेंगे इसको, तो जो लेबर जिस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है उसको ही हम यूज़ करेंगे एज पर द एस्टिमेट। तो ये एस्टिमेटिंग का सेक्शन होता है हमारा प्लानिंग। दूसरा है हमारा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग, सेकंड इज शेड्यूलिंग। Scheduling is the allocation of resources. Scheduling is the allocation of resources. Scheduling is the allocation of resources. Allocation of resources such as material, manpower, time, money, etc. etc. Material, manpower, time, money, etc. 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 इन एप्रोप्रिएट मैनर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इन एप्रोप्रिएट मैनर, in appropriate manner such that it results in efficient working. Such that it results in efficient working. Right? तो इसको जरा सा समझिए। शेड्यूलिंग इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होते हैं हमारे पास? मटेरियल रिसोर्सेस, मैन पावर रिसोर्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? जनरली तो दो ही रिसोर्सेस होते हैं, मटेरियल, मैन पावर। मनी को भी आप रिसोर्सेस कह सकते हैं। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस सच एज मटेरियल, मैन पावर, टाइम, मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन अप्रोप्रिएट मैनर सच दैट इट रिजल्ट्स इन एफिशिएंट वर्किंग। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब ये हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। देखिए, अगर मान लीजिए, रोड का एग्जांपल थोड़ी देर के बाद लेंगे, बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए बिल्डिंग में हमें फाउंडेशन करनी है, अगर हमें फाउंडेशन करनी है तो इस फाउंडेशन के लिए अगर मान लीजिए कि 3000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है और हमें 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो एक ही 50 लाख रुपए रिसोर्सेस हो गया। और थ्रू आउट अगर मान लीजिए फाउंडेशन का ड्यूरेशन अगर हमारा 15 दिन का है, पाइल फाउंडेशन है कंप्लीटली, तो इस 15 दिन के लिए हमें 25 लेबर और 2 मैसन्स, स्किल्स लेबर, राजमिस्त्री, इसकी जरूरत पड़ रही है। इसको हमने 25 दिनों के लिए हायर कर रखा है। लेकिन पता चला इफिशिएंट वे में आपने नहीं किया, आपने 2 की जगह 10 मैसन्स रख लिया जिसकी जरूरत ही नहीं है, और 25 लेबर की जगह पे आपने 10 लेबर रखा जहां पर कि आपकी 25 की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका रिसोर्स जो है अप्रोप्रिएट वे में अरेंज नहीं होगा। तो रिसोर्स हमारी बिल्कुल क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। उसी चीज को हम कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे के टॉपिक में है रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स लेबलिंग, रिसोर्स स्मूथनिंग, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मैन पावर, टाइम, मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन अप्रोप्रिएट मैनर सच दैट इट रिजल्ट्स इन एफिशिएंट वर्किंग, राइट? अब जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए कि हमें ना यहां पर एक रोड बनाना है, ये हमें रोड बनाना है, ठीक है? अब इस रोड को बनाने के लिए एग्जैक्टली सबसे पहले हमको अर्थवर्क का काम करना है, ठीक है? अर्थवर्क का काम करना है। अब काम अगर अर्थवर्क का करना है तो हम अभी साइट पे सीमेंट स्टॉक करके क्यों रखें पहले से? अगर अभी अर्थवर्क का काम करना है और अर्थवर्क अभी 2 महीने तक चलेगी, 2 मंथ चलेगी अर्थवर्क। मान लीजिए जनवरी का मंथ है तो जनवरी पूरा चलेगा, फरवरी पूरा चलेगा। तो और ये सीमेंट का काम जो है ये पीसीसी, जब हम इस पे पीसीसी करेंगे तो पीसीसी का काम अगस्त में है, तो इस सीमेंट को हम अगस्त में ही मंगवाएंगे ना। अभी मंगवाने से क्या फायदा होगा? क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा आप स्टोर करेंगे तो सीमेंट खराब हो जाएगा आपका, और सीमेंट की स्ट्रेंथ पर डे डिक्रीज भी करती है, ठीक है? वो हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में डिस्कस करेंगे कि पर डे सीमेंट की स्ट्रेंथ कितनी डिक्रीज करती है, बट दिस इज द टॉपिक ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, राइट? तो देखिए एफिशिएंट वर्किंग। अब यहाँ पर मान लीजिए हमको
स्टैटिक रोलर की ज़रूरत है, तो हम क्यों वाइब्रेटरी रोलर मंगाएंगे? अगर सॉइल हमारा सिंपल सैंडी सॉइल है तो स्टैटिक रोलर से अगर हमारा काम चल रहा है तो वाइब्रेटरी रोलर मंगाने की ज़रूरत क्या है? अगर सिंपल ब्लैक कॉटन सॉइल है, स्टैटिक रोलर से काम चल रहा है तो स्टैटिक रोलर से काम चलाएंगे, वाइब्रेटरी नहीं लाएंगे यहाँ पे। तो जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम मेंशन करते हैं। जब आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप देखते हैं आपको लिखा रहता है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से लिखा रहता है, सीरियल नंबर, दिस इज 1 आइटम सीमेंट, राइट, क्वांटिटी Q2Y 5 बैग, क्वांटिटी ऐसे मान लीजिए बैग में लिखा रहेगा 5 बैग, कॉस्ट कितना आ गया आपको रख लीजिए 500 रुपये, 500 रुपये पर बैग। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया 500 इंटू 5, 2500। इसी तरीके से सारे आइटम का करके यहाँ पर नेट एस्टिमेटेड अमाउंट जोड़ देते हैं उसमें, राइट। तो इस तरीके से एस्टिमेटिंग में हम लोग करते हैं इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें शेड्यूलिंग से ही हमें पता चलती है। तो अब जो है हमारा जो एस्टिमेट जो बन रहा है, एक एस्टिमेट जो बन रहा है उसमें प्लानिंग और शेड्यूलिंग जो है दोनों एक ही साथ कर लिया जाता है। एक लाइन हम लोग और यहाँ लिखेंगे शेड्यूलिंग में, शेड्यूलिंग ऑल्सो आप लिख लीजिए, ऑल्सो प्रोवाइड इन्वॉल्व्स इन, शेड्यूलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को अरेंज करने में। मैं यहां लिख देता हूं नोट में, शेड्यूलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को अरेंज करने में, राइट। अब यहां पर क्या है, इन ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ डिजाइन, एक नोट और लिखेंगे, नोट, इन ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ डिजाइन, इन ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ डिजाइन, planning and scheduling are performed as one step, राइट। तो प्लानिंग और शेड्यूलिंग जो होती है ये दोनों जो होती है हमारी काम एक्सिक्यूट करने के पहले का स्टेप होता है। जैसे मान लीजिए कि हम वर्क एक्सिक्यूट करवा रहे हैं, जैसे हमें अगर मान लीजिए यहाँ पर एक स्कूल बनानी है, यहाँ पर एक स्कूल बनानी है, तो हमने ये सोचा कि यहाँ पर हमें इस विलेज में एक स्कूल बनाना है, और इस स्कूल को बनाने के लिए पहले हमने प्लान किया। प्लान करने के साथ हमने लैंड की अवेलेबिलिटी चेक करी, और उसके बाद हमने क्या करा कि सर्वे किया कि जगह अवेलेबल वाकई है कि नहीं है, और जगह मिला तो हमने क्या किया, प्लान किया और एस्टिमेट बनाया हमने इसका। तो एस्टिमेट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इस बिल्डिंग को कैसी बनानी है, कितने क्लासरूम चाहिए, इसमें 5 क्लासरूम चाहिए, राइट। 5 क्लासरूम की साइज कितनी चाहिए, 20 बाई 20 की साइज चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने एक मैप तैयार कर लिया। उसके बाद जब मैप हमारा तैयार हो गया प्लानिंग का, हमने क्या किया, शेड्यूलिंग किया कि पहले कौन सा काम करेंगे, उसके बाद कौन सा काम करेंगे, इसके लिए फंड्स कितना लगेगा, एक एस्टिमेट हमने बना लिया, राइट। सो इन ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ डिजाइन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आर परफॉर्म्ड एज वन स्टेप। तो जब आप DPR बनाते हैं, DPR पहले सिंपल एस्टिमेट बनाया जाता था, तो इसको कहते हैं डिटेल्ड, P फॉर प्रोजेक्ट and R for report, detailed project report, right. So this is called DPR। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे। So now next is controlling। मैं एक लाइन चलो नोट बाद में मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं है, बाद में लिख दूंगा। कंट्रोलिंग, तीसरा आपका है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी लिख सकते हैं आप, और प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इट इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई critical activity
देखिए मैं आपको एक्टिविटी के बारे में थोड़ा अभी बता देता हूँ, डोंट वरी, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा प्रॉपर वे में। जब हम लोग नेटवर्क पढ़ेंगे तो एक्टिविटी इवेंट का प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे और फिर समझेंगे, लेकिन अभी बार बार ये टर्म यूज़ हो रहा है तो आपको नए नहीं लगने चाहिए टर्म। सो एक्टिविटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, सो दैट इज़ एन एक्टिविटी। और जैसे मेरी क्लास अभी खत्म होगी, मान लीजिए क्लास खत्म होगी, क्या हो गया, एक इवेंट क्रिएट हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप क्या किया, आप पढ़ने के लिए अभी आपने पढ़ाई शुरू कर दी, तो शुरू कर दी तो क्या हो गया, ये एक इवेंट हुआ। आपकी पढ़ाई चल रही है, देन दैट इज एन एक्टिविटी, मीन्स एनी वर्क अंडर द प्रोग्रेस दैट इज डिफाइंड एज एक्टिविटी। तो यहां पर मैंने लिखा है, इट इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल का मतलब होता है रनिंग एग्जैक्टली ऑन शेड्यूल, रनिंग एग्जैक्टली ऑन शेड्यूल but not delay, but not delay। दूसरा सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी, सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी, सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी मीन्स ऑलरेडी डिलेड एक्टिविटी, ऑलरेडी डिलेड एक्टिविटी और बिहाइंड द शेड्यूल, और बिहाइंड द शेड्यूल, राइट, ऑलरेडी डिलेड एक्टिविटी और बिहाइंड द शेड्यूल। एंड सब क्रिटिकल एक्टिविटी, सब क्रिटिकल activity means just before the schedule, just before the schedule, right, but not completed। क्योंकि अगर ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये एक्टिविटी थोड़ी रहेगी, बट नॉट कंप्लीटेड। अब यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास कि ये जो हमने डेफिनेशन लिखा है, इसमें जो टर्म है हमारे, देखिए, प्रोसेस टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल एक्टिविटी, राइट, मीन्स रनिंग एग्जैक्टली ऑन शेड्यूल बट नॉट डिले। दूसरा है सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी, दिस इज सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी मीन्स ऑलरेडी डिलेड एक्टिविटी बिहाइंड द शेड्यूल। और तीसरा है हमारा सब क्रिटिकल एक्टिविटी मीन्स जस्ट बिहाइंड द शेड्यूल बट नॉट कंप्लीटेड। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी काम को अभी शुरू करते हैं, ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि CPM फर्ट की वर्कबुक आपको 10 घंटे के अंदर पूरी की पूरी सॉल्व कर लेनी है, ठीक है, और ये 10 घंटा आपका शुरू होता है, ये 10 घंटा आपका शुरू होता है 12 नून, राइट, तो 10 बजे रात तक आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो आप में से कई बच्चे जो है CPM फर्ट में 10 चैप्टर है तो 1-1 घंटे हर चैप्टर लग रहा है, तो हमने 5 बजे चेक किया तो एक बंदा 5 चैप्टर कर चुका है, मतलब अगले 5 घंटे में वो 5 चैप्टर और कर लेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे बताता हूँ आपको, क्योंकि इतनी चीज़ें याद नहीं रह पाएगी, ऐसे बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि CPM फर्ट में हमारे 10 चैप्टर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 4 3 2 1। अब हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, राइट, तो स्टूडेंट 1 हम 5 घंटे के बाद चेक किए तो ये हमारा स्टूडेंट 1 है, ये 5 घंटे में बिल्कुल, चलिए ये दिखेगा नहीं आपको, मैं इसको, ये स्टूडेंट 1 5 घंटे में 5 चैप्टर आपका कर चुका है, 5 घंटे में एग्जैक्टली 5, मान लो इसका नाम है राम, तो राम ने क्या किया, 5 घंटे में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, करेक्ट। तो 5 घंटे में जब इसने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हर चैप्टर में 1-1 घंटा इसको लगता है, मतलब राम अभी क्या है, दिस इज क्रिटिकल, क्योंकि ये अगर बीच में खेलने कूदने चला गया, एंजॉय करने चला गया ये बीच में, तो ये डिले हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं, ये मान लीजिए ये बंदा जो है, ये बंदा है आपका श्याम, ठीक है, ये है श्याम,
और इसने क्या किया 5 घंटे में, मैं 5 घंटे की बात कर रहा हूँ, 5 आवर, ये 5 आवर, और ये जो है आपका ये चैप्टर है, दिस इज चैप्टर। तो ये 5 घंटे में श्याम ने क्या किया है 7 चैप्टर कर लिया है। मतलब श्याम के पास अभी 2 घंटे स्पेयर हैं, 2 घंटे ये खेल कूद कर सकता है, तो भी आपको 10 बजे तक ये होमवर्क कंप्लीट करके दे देगा, राइट। तो श्याम कौन सी एक्टिविटी हो गया हमारा यहाँ पे, श्याम इज सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल। देखिए क्रिटिकल का मतलब होता है बिल्कुल नालायक एक्टिविटी, मतलब ऑन टाइम ही चलेगा, और सुपर क्रिटिकल का मतलब होता है बड़ा वाला नालायक, बिल्कुल लेट ही चलेगा वो, राइट। सब क्रिटिकल का मतलब होता है अच्छी एक्टिविटी। फिर से मैं आपको दूसरी भाषा में समझाता हूँ। क्रिटिकल का मतलब समझिए एलओसी पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, तो बिल्कुल ये ऑन टाइम ही चलेगा। और सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर चुका है, मतलब लेट हो चुका है ये। और सब क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, नहीं ये अच्छी एक्टिविटी, ये काम बहुत पहले पहले कर लेती है। अब देखिए यहाँ पर तीसरी एक्टिविटी मैं आपको ये बताता हूँ, ये रख लीजिए आप, ये आपका है, मान लीजिए दिस इज, मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी रख लीजिए, सीता रख लीजिए, ठीक है, सीता। अब ये क्या किया इन्होंने, 3 चैप्टर मात्र कंप्लीट किया है, कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो ये तो ऐसे भी ऑन टाइम चलेगी अगर, तो ये कितना बजे पहुंचेगी, ये 12 घंटे में कंप्लीट करेगी या 13 घंटे में कंप्लीट करेगी। तो ये एक्टिविटी जो हो गई हमारी, सीता वाली जो एक्टिविटी हो गई, ये क्या कहलाएगी हमारी, सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी। अब आप बताइए, खुद अपने दिमाग पर जोर डालिए आप, कि बीइंग ए पेरेंट्स ऑफ ऑल ऑफ दोज 3 चिल्ड्रेन, राम, श्याम एंड सीता, आप बताइए कि एक बंदा जो है ऑन टाइम होमवर्क करता है, एक समय से पहले करता है, और दूसरा तो बिल्कुल लेट है, लापरवाह किस्म का इंसान है, आप किस पे फोकस करेंगे, आप किस पे फोकस करेंगे, जो अच्छा है वो या जो बुरा है वो। तो आप बुरे वाले पे फोकस करेंगे, जो टाइम ऑन टाइम कंप्लीट नहीं करता है। ये तो अपना काम वैसे भी कर लेगा, श्याम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ये अपना काम कर लेगा। सीता इज़ वेरी पुअर, तो ये अपना काम नहीं कर पाएगी, इस पर आपको फोकस डालना पड़ेगा। राम अपना काम ऑन टाइम करता है, लेकिन अगर इसका दिमाग कहीं इधर उधर भटका, इधर उधर गया दिमाग इसका, तो ये भी लेट हो जाएगा। सो वी शुड हैव टू गिव स्पेशल अटेंशन ऑन दिस 3 एक्टिविटीज, दिस 2 एक्टिविटीज, दैट इज राम एंड Sita. We should have to focus on these 2 activities. So we should have to give extra attention. We should have to give extra attention on किस में, राम और सीता पे। सो ऑन, यहां पर तो राम और सीता लिख नहीं सकते, ऑन क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल एक्टिविटीज। वी शुड हैव टू गिव एक्स्ट्रा अटेंशन ऑन क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्लियर हो गया, इन दोनों पे हमको एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत पड़ेगी। एकदम 100% अपने थॉट्स को आप क्लियर रखेंगे, राइट। वी शुड हैव टू गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू दिस। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा नोट्स आ रहा है हमारे पास, सो मेनी टाइम्स आस्क इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। क्या है नोट, देखते हैं हम लोग, दिस इज नोट। देखिए प्लानिंग और शेड्यूलिंग, ये जो 2 स्टेप है हमारा, हम प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले करते हैं, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। लेकिन कंट्रोलिंग कब होगी, जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगी, तो हम चेक करेंगे कि कौन बहुत इंटेलिजेंट है और कौन बहुत पुअर है और कौन बिल्कुल एवरेज है। तो ये हमको कब पता चलेगा, व्हेन आवर प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड। मेरा कहने का मतलब है कि प्लानिंग और शेड्यूलिंग तो पहले ही पता चल जाएगी, लेकिन कंट्रोलिंग तब पता चलेगा जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तभी तो हमको पता चलेगा ना कि फाउंडेशन वाला लेबर लेट कर रहा है या फिर ढलाई वाला लेबर लेट कर रहा है, आखिर प्रोजेक्ट किसकी वजह से डिले है। तो कंट्रोलिंग हम तब कर सकते हैं जब हमारी प्रोजेक्ट शुरू हो चुकी हो। सो दैट वी कैन राइट हियर, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आर परफॉर्म्ड, प्लानिंग एंड scheduling are performed before execution of the
project, whereas controlling is carried out during or after, during मत लिखिए, carried out after start of the project, after start of the project. So it's a very fundamental point, right? So it's a very fundamental notes, correct? तो अब यहां पर हम लोग आते हैं, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग हमारी क्लियर हो गई, राइट? हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं WBS, राइट? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आप लिख लीजिएगा, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, WBS, राइट? WBS। तो ये WBS होता क्या? ये आया 20 नंबर का ES में लिखने को, कन्वेंशनल में। WBS पहले नहीं आता था, इस बार ही आया था। इट इज इंक्रीमेंटल एंड hierarchical decomposition of project phases. It is incremental and hierarchical decomposition of project phases. It is a top down approach. It is suitable for big project under complex conditions. It is suitable for big project under complex conditions. तो यहां पर हम लोग इस दो पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, इंक्रीमेंटल को अलग करेंगे अंडरलाइन, एंड हायरार्किकल डिकम्पोजिशन इसको अलग करेंगे। क्या होता है ये, राइट? इट इज ए टॉप डाउन अप्रोच, कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है, और ये लाइन भी आता है, इट इज सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट अंडर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, राइट? तो यहां पर देखते हैं कि इंक्रीमेंटल एंड हायरार्किकल डिकम्पोजिशन क्या होती है। सो जस्ट हियर आई विल राइट एन एग्जाम्पल, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बिल्डिंग्स का भी ले सकते हो, रोड्स का भी ले सकते हो। इफ यू वांट कि हमें डिफरेंट एग्जाम्पल दीजिए सर, मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं सो दैट यू कैन जस्टिफाई योर सेल्फ इन योर इंटरव्यू ऑल्सो। लेकिन अगर आप और भी चाहते हैं देन मैं देखता हूं व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ टाइम, देन आई विल जस्ट शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म अदर एग्जाम्पल ऑल्सो, कि बिल्डिंग का भी एग्जाम्पल दे दें आपको, ठीक है? तो देखिए अभी एग्जाम्पल रोड का देता हूं। सो एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 25 किलोमीटर विलेज रोड of flexible pavement, राइट? एक बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए, राइट? 25 किलोमीटर लेंथ इसलिए मेंशन किया मैंने कि अगर विलेज रोड की लेंथ 1 किलोमीटर होगी तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 70 लाख होगी, और ये प्रोजेक्ट 9 महीने का प्रोजेक्ट होगा। 9 महीने के प्रोजेक्ट को हम स्मॉल प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो 3 साल से ज़्यादा की प्रोजेक्ट होती है उनको ही हम बिग प्रोजेक्ट बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर इनको 3 साल से ज़्यादा टाइम हम अलाउ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है WBS, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ
ऑफ 25 किलोमीटर विलेज रोड। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग रोड बनाते हैं तो पहला फेज क्या होता है, तो जो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाते हैं सबसे पहला जो वर्क होता है आपका, पहले उसको डिवाइड कर दीजिए आप, सॉइल सबग्रेड। पहले तो अर्थ वर्क करेंगे आप, तो मैं यहां पर अर्थ वर्क मेंशन कर देता हूं, अर्थ वर्क, राइट। और इस अर्थ वर्क के बाद हम करते हैं सॉइल सबग्रेड, सॉइल सबग्रेड, एंड देन जो हम करते हैं दिस इज सब बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, और देन बेस कोर्स, बेस कोर्स, एंड देन सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स। तो ये 5 पार्ट में हम लोग रोड को बनाते हैं, राइट। ठीक है, इस 5 पार्ट में बनाते हैं। तो अब यहां पर क्या है, पहला अर्थवर्क। अर्थवर्क में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए अर्थवर्क में सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आप साइट पर गए तो पहला काम, आप जब फील्ड सर्वे वगैरह सब हो चुका है, ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी है, डीपीआर आपके हाथ में है, आपको साइट पर जाना है, देखना है, राइट। अब क्या है कि फर्स्ट बीइंग ए साइट इंजीनियर आप डीपीआर लिए और जाकर साइट पर देखें कि इज देयर एनी हिंड्रेंस, कोई प्रॉब्लम है क्या है। सो फॉर्मली उसको हम लोग ट्रांजिट वॉक भी बोलते हैं और फील्ड सर्वे भी बोलते हैं। सो हियर यू कैन राइट इट फील्ड सर्वे और ट्रांजिट वॉक। ट्रांजिट वॉक एक बार सर्वेयर जो होता है, जो डीपीआर बनाता है, वो भी करता है, और एक बार जो फील्ड इंजीनियर, जो गवर्नमेंट इंजीनियर होते हैं, उनको भी करना पड़ता है। सो फर्स्ट इज फील्ड सर्वे और ट्रांजिट वॉक। उसके बाद आप क्या करते हैं, अब आप फील्ड में काम करना शुरू करते हैं। जब आपको लेंथ मिल गया, डीपीआर बोल रहा है 25 किलोमीटर लेंथ है, आप साइट पर गए तो आपको 24 किलोमीटर ही दिख रहा है, मतलब फील्ड सर्वे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी। तो हो सकता है कहीं पे ब्रांच उसने निकाला होगा, जैसे रोड ऐसा स्ट्रेट जा रही है, हो सकता है इधर लिंक रोड निकाला होगा, इधर लिंक रोड निकाला होगा। तो आपने आप गए और एज पर द डीपीआर आपने खोजा सारे रूट्स को, आपको 25 किलोमीटर लेंथ मिल गई। अब आप काम शुरू कर रहे हैं। तो अब आपने देखा कि रोड पे अलाइनमेंट में बहुत सारे झाड़ हैं, जंगल झाड़ हैं, पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्री कटिंग, ट्री एंड ग्रास कटिंग, राइट, ट्री एंड ग्रास कटिंग। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सॉइल को विलेज रोड में जनरली करते हैं। जनरली विलेज रोड में सॉइल के कैरेज का प्रोविज़न नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर ऐसे विलेज रोड बनाना है तो यहीं से बगल से मिट्टी काट के यहाँ पर डालो, बगल से मिट्टी काट के यहाँ पर डालो। तो सॉइल कटिंग एंड फिलिंग, सॉइल कटिंग एंड फिलिंग, सॉइल को काट के रोड पे रखा। अब क्या करेंगे, सॉइल कटिंग एंड फिलिंग के बाद सॉइल को हम लोग लेवल करके कॉम्पैक्शन कर देंगे, राइट। लेवलिंग एंड लेवलिंग रखो, लेवलिंग, राइट, एंड देन वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन, एंड देन वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन, राइट। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसकी मदद लूँगा अभी, क्योंकि ये फिर आगे बढ़ जाएगा। वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन, राइट। वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन का मतलब होता है जब आप ड्राई कॉम्पैक्शन करते हैं, ड्राई रोलिंग करते हैं, तो प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, आगे में वाटर टैंक से धीरे धीरे पानी गिरते जाता है और पीछे स्टैटिक रोलर से हम कॉम्पैक्शन करते जाते हैं, राइट। सो दिस इज वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन। लेकिन अब वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन आपने किया है तो क्या कॉम्पैक्शन आपका जेन्युइन है क्या, आप इसे चेक करेंगे। तो टेस्ट ऑफ कॉम्पैक्शन, राइट। सो नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ कॉम्पैक्शन।
टेस्ट ऑफ कॉम्पैक्शन बाय कोर कटर। इस कोर कटर से कॉम्पैक्शन की आप टेस्ट कीजिए, राइट। तो कोर कटर से तो आपने कॉलेज में बहुत किया होगा। सो कोर कटर से हम लोग कॉम्पैक्शन की टेस्ट करते हैं। कोर कटर को निकाल के जमीन के अंदर ऐसे धंसाते हैं, हैमरिंग करते हैं और फिर उसके बाद ऐसे निकाल लेते हैं। उस ब्लॉक को देख के उसकी ड्राई डेंसिटी चेक करते हैं, राइट। जो परमिसेबल जो जितनी होगी, जितना आपके डीपीआर में लिखा होगा इस सॉइल के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। अब दूसरा पोर्शन जो है हमारा सॉइल सबग्रेड का है, ठीक है। देखिए मैंने बोला था ना टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप क्या है आपका अर्थवर्क, डाउन क्या है फील्ड सर्वे, राइट। सो टॉप से बॉटम की ओर। कई जगह बुक्स में तो नहीं, बच्चे गलती करते हैं। कई जगह बुक्स में तो ऐसा दिया नहीं है इन चीज़ों का। बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले फील्ड सर्वे आया तो फील्ड सर्वे को ऊपर लिखते हैं, फिर लिखते हैं ट्री एंड ग्रास कटिंग, फिर लिखते हैं सॉइल कटिंग। नहीं, वो गलत होगा, 102% गलत होगा वो। टॉप डाउन अप्रोच, तो जो चीज़ें सबसे पहले आती है उसको आपको सबसे नीचे लिखना है, मतलब इस पैटर्न में आपको लिखना है। देखिए इस पैटर्न में आपको जाना है, यहाँ पर ऐसे। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये हुआ, दिस एरो को देखिए आप, टॉप टू बॉटम, राइट। सो दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम, दैट इज बॉटम टू टॉप, डाउन टू टॉप। अब यहां पर क्या है, सॉइल सबग्रेड। तो सॉइल सबग्रेड क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब मैं क्वालिटी कंट्रोल आपको पढ़ाऊंगा ना, तो ये चीज़ें जो मैंने लिखी है, ये सारी चीज़ें, इसका मैं आपको एक एक्चुअल पिक दिखा दूंगा, क्वालिटी कंट्रोल में डेफिनेटली दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ इन सारी चीज़ों का एक पिक दिखा दूंगा आपको। कैसे ड्राई डेंसिटी की चेक करते हैं कोर कटर से, वो भी पिक जब मैंने जो रोड पे किया है वो मैं दिखवाऊंगा आपको कि किस तरीके से किया जाता है वो। सॉइल सबग्रेड क्या होता है, देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग। सॉइल सबग्रेड में बालू जो होती है, सैंड जो होती है, लोकल सैंड, उसको हम 1 फीट हाइट तक, डेप्थ जो होती है सैंड की 1 फीट रखते हैं, राइट। 1 फीट, 1 फीट, वहां तक पूरे सरफेस पे इसको स्प्रेड कर देते हैं और उसकी रोलिंग कर देते हैं। ये फिल्टर का काम करता है, जो ऊपर के लेयर से पानी आता है ना, इसको एब्जॉर्ब करता है ये। क्योंकि अगर पानी रह गया हमारा ऊपर के लेयर पे, ऐसे मान लो रोड बना है, ऊपर के लेयर पे ही पानी रह गया तो रोड में क्रैकिंग आएगी, रोड फटना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, फिल्टर मीडिया के लिए सॉइल सबग्रेड को यूज करते हैं। सो यहां पर लिखेंगे हम लोग, मैंने 1 फीट जो बोला सैंड की डेप्थ, ठीक है। आप इसको रटिएगा मत, एक कोड आती है SP20 फॉर विलेज रोड मैनुअल। उस कोड को देखिएगा, वहाँ पे 1 फीट ही दिया है, बट ये कोड चेंज होते रहते हैं, हर 1 साल 2 साल पे ये कोड चेंज होते रहती है, इसमें नई नई चीज़ें आती रहती है। बट अभी 1 फीट का है तो मैंने आपको 1 फीट बताया, राइट। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इंस्टॉलेशन ऑफ सैंड ऑन सरफेस। उसके बाद क्या करेंगे आप, वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन, सेम प्रोसीजर है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, टेस्ट ऑफ कॉम्पैक्शन बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। आता होगा आपको सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। नहीं भी आता है तो एक्चुअल पिक देखेंगे और वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर भी दूंगा सैंड रिप्लेसमेंट, बिकॉज दिस इज नॉट आवर टॉपिक, सो नो नीड टू डेविएट फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। ये लाइनिंग मत दीजिएगा आप एग्जाम में, ये मैंने अपने लिए लिखा है। सब बेस कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं जनरली विलेज रोड मैनुअल में इसको कहा गया है सब बेस कोर्स को ग्रैन्युलर सब बेस कोर्स। मतलब ये रहा हमारा बालू, ठीक है, दिस इज सैंड। इस सैंड में हम क्या करते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, फ्लैकी साइज का रहेगा, ऐसे इसको हम मिक्स कर देते हैं सैंड के साथ। तो इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड मेटल। पत्थर को हम लोग मेटल कहते हैं और इस सैंड को हम लोग सैंड ही बोलते हैं, दैट इज लोकल सैंड आप बोल सकते हैं यहाँ पर, लोकल सैंड, राइट। सॉरी लोकल सैंड नहीं, ग्रैन्युलर सैंड अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, ग्रैन्युलर
दानेदार बालू जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलर सैंड। लोकल सैंड वो चलेगा आपका, राइट, उसमें कुछ लोकल सैंड में मिट्टी का भी अंश होता है। तो यहाँ पर ग्रैनुलर सैंड। अब जो ये मेटल होती है, जो पत्थर होते हैं, ये होनी चाहिए आपकी 60%, और ये जो बालू होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 40%। यही इनका रेशियो होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं, नोइंगली नहीं अननोइंगली गलती हो जाती है, कंपोजिशन उनका सही नहीं रह पाता है। तो इस कंपोजिशन को इंजीनियर्स को सही करना है, और इस कंपोजिशन को हम कैसे सही करते हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, राइट, जस्ट मैं बता दूंगा। तो इस कंपोजिशन को कैसे, तो पहले तो इस मिक्सचर को तैयार करो, क्योंकि सैंड और मेटल ये दोनों आपके साइट पर आएगा, मिक्स आपको ही तैयार करना है, बीइंग ए साइट इंजीनियर आपको तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक बकेट लेंगे, उसका 6 पार्ट इधर रख देंगे, सैंड का 4 पार्ट इधर रख देंगे, और उसी बकेट से मेटल का 4 पार्ट इधर रख देंगे, और दोनों को मिक्स करेंगे, राइट। तो मिक्सचर हम बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं, और इसकी हम शुद्धता की जांच भी कर सकते हैं, इसकी प्योरिटी की चेक भी कर सकते हैं कि बाकी ये मिक्सचर सही है या गलत है, राइट। तो पहले तो यहां पर लिखेंगे प्रिपेयर ए मिक्स ऑफ granular sand and stone metal। मैं यहाँ पर मेटल की साइज नहीं लिखूंगा, क्योंकि साइज हर साल चेंज हो रही है स्पेसिफिकेशंस में। SP20 में 2017, 18, 19 तक की जो साइज है आपकी वो 53 mm से 0.075 mm तक की साइज है। 53 mm तक का रहना चाहिए, मतलब 53 mm के सीप में डालोगे तो सारा पत्थर आपका निकल जाएगा। 26.5 mm का भी रहेगा सीप, 4.75 mm का भी सीप रहेगा। पत्थर डिफरेंट साइज के होंगे, लेकिन मैक्सिमम इज 53, मिनिमम इज 0.075, राइट। तो यहाँ पे प्रिपेयर है मिक्स ऑफ ग्रैनुलर सैंड एंड स्टोन मेटल। उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन करो, इंस्टॉल ए मिक्स ऑन सरफेस, राइट। अब यहां पर इंस्टॉल करने के बाद इसकी कॉम्पैक्शन करो, वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन। और इस वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन के बाद क्या करोगे आप, टेस्ट ऑफ ग्रेडिंग बाय sieve एनालिसिस एंड compaction by sand replacement method। compaction by sand replacement method, test of compaction by sand replacement method। मैं इनको यहां पर लिख देता हूं, बेस कोर्स को, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स। दिस इज बेस कोर्स, जो पहले लिखा था हम लोगों ने, और यहाँ पर रखते हैं सरफेस कोर्स को। दिस इज सरफेस कोर्स। ठीक है, तो बेस कोर्स में क्या है हमारा, ये तो क्लियर हो गया। आप मैं स्क्रीन इधर कर देता हूँ सो दैट यू कैन राइट इट बाय पॉजिंग द इंटायर टर्म्स। देखिए आप इसको लिख सकते हैं, पॉज करके आप आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए बेस कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इस रोड सरफेस पे, जैसे ये रोड सरफेस है, इस पे हम लोग फ्लैकी साइज का 63 mm से 90 mm तक का हम लोग पत्थर ऐसे इस पे स्प्रेड कर देते हैं, प्रॉपर एकदम डेंस फॉर्म में इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस पे हम लोग मोरम डालते हैं। मोरम इज ए वेरी गुड बॉन्डिंग मटेरियल। इस मोरम को डालते हैं ताकि ये मोरम जो है इनके वॉइड्स को पकड़ के जकड़ ले अच्छे से, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, ताकि ये पत्थर सेग्रीगेट ना हो। मोरम का यही काम होता है।
तो यहाँ पर बेस कोर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे बेस कोर्स में मूरम की ज़रूरत पड़ती है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करना होगा हमें, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मिक्स नहीं करेंगे हम लोग, राइट। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टोन मेटल ऑन सरफेस, ठीक है। और उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ मूरम। मूरम इज ए वेरी गुड बाइंडिंग मटेरियल, राइट। सो इंस्टॉलेशन ऑफ मूरम ऑन सरफेस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट रोलिंग करेंगे। सो दैट यहां पर हम लोग लिखेंगे, लेट्स सी हियर, यहां पर लिखेंगे हम लोग वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन, राइट, बाय स्टैटिक रोलर, करेक्ट। तो यहां पर अगर वाइब्रेटरी रोलर यूज करोगे तो और बेहतर होगा। सो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर, राइट। अब यहां पर ये, लेकिन जो डीपीआर में स्पेसिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे वाटरिंग एंड कॉम्पैक्शन के बाद लास्ट टेस्ट ऑफ कॉम्पैक्शन बाय सैंड रिप्लेसमेंट से इसको भी करते हैं, मेथड एंड टेस्ट ऑफ ग्रेडिंग बाय सीव एनालिसिस, राइट, सीव एनालिसिस। इस तरीके से इसको हम लोग करेंगे इस स्टेप को। नाउ लास्ट स्टेप इज, आप इसको लिख लेना, लास्ट स्टेप इज सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स में क्या करते हैं, जो आपको बेस कोर्स है जनरली WBM ग्रेडिंग 2 ग्रेडिंग 3 हम लोग यूज करते हैं, तो इस बेस कोर्स को करने के बाद थोड़े दिन तक सरफेस को छोड़ देते हैं, राइट। उसके बाद सबसे पहले जब हम ये करने आते हैं सरफेस कोर्स, जिसको हम कहते हैं प्री मिक्स कारपेटिंग, जो आप लोग कालीकरण देखते हो, बिटुमिनस वाला पार्ट देखते हो ना, दैट इज कॉल्ड प्री मिक्स कारपेटिंग। तो सबसे पहले इस सरफेस को क्लीन करना पड़ता है। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्लीनिंग द सरफेस बाय एयर कंप्रेशर। देखते हैं एक बंदा पीछे मशीन लगा के ऐसे करके स्प्रेड करता है। मैं एक्चुअल पिक्चर दिखाऊंगा आपको एयर कंप्रेशर का, उसमें क्वालिटी कंट्रोल में। मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, तो कौन सी चीज़ों को पहले करें, कौन सी चीज़ों को बाद में करें, ये बहुत डिफिकल्ट होता है इस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर क्या है कि इन चीज़ों का एक्चुअल पिक मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्लीनिंग द सरफेस बाय एयर कंप्रेशर। अब क्या करेंगे, इस पे सरफेस क्लीन हो गया, तो हम लोग सबसे पहले इस पे क्या करते हैं, प्राइम कोट करते हैं। प्राइम कोट जो होता है एक इमल्सन होता है ब्राउन कलर का, जिसको हम पूरे सरफेस पे ऐसे छिड़क देते हैं, राइट। उसको मैं एक पीपीटी में भी बनाया है मैंने, वो दिखाऊंगा। पूरे सरफेस पे ऐसे फैला देते हैं उसको, और 24 घंटे तक सरफेस को छोड़ देते हैं, राइट। तो 24 घंटे तक क्या होता है कि वो एकदम पूरा का पूरा ब्राउन कलर का हो जाता है, और अगले दिन फिर हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे प्राइम कोट ऑन सरफेस। इसको हम लोग RS1 भी बोलते हैं, सॉरी SS1 बोलते हैं, स्लो सेटिंग होता है SS1, प्राइम कोट ऑन सरफेस। और दूसरा उसके बाद जो होता है 24 घंटे के बाद हम लोग करते हैं, ये दोनों स्टेप एक साथ होता है, इसलिए मुझे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा इसे। सो टैग कोट एंड प्रीमिक्स कारपेटिंग, टैग कोट एंड प्रीमिक्स कारपेटिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PMC बोलते हैं। आपने देखा होगा एक बंदा टीन के डब्बे में ऐसे से लेके इमल्सन को छिड़क रहा होगा, और पीछे से पेवर एक मशीन होती है, उससे प्रीमिक्सिंग का मटेरियल गिरते आ रहा होगा, राइट। और पीछे से फिर रोलर भी चलते आ रहा है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद प्रीमिक्स कारपेटिंग, एंड देन यहाँ पर रोलिंग, कॉम्पैक्शन बाय स्टैटिक रोलर, राइट, एंड देन
कॉम्पैक्शन बाय स्टैटिक रोलर, एंड देन एक स्टेप और है इसमें करते हैं हम लोग। इसको होने के बाद हम लोग उस पर सील कोट करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब इस पे ये जो कालीकरण वाला सरफेस ऐसा ऐसा रहेगा ना, ऐसा ऐसा, तो जब रेन ड्रॉप्स इस पे गिरेगी इस तरीके से, तो ये रेन ड्रॉप्स जो होती है इसके वॉइड्स के अंदर घुस जाएगी इस तरीके से, तो ये सरफेस हमारा खराब हो जाता है। तो इस वॉइड्स को ब्लॉक करने के लिए एक पाउडर यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सील कोट। सील कोट जनरली टाइप सी, टाइप ए, टाइप बी होता है, सो दैट इज सील कोट। ये आप हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। सो दिस इज सील कोट। एंड नाउ आफ्टर दैट टेस्ट ऑफ compaction and thickness of bituminous layer। जनरली जो बिटुमिनस लेयर जो आप ये देखते हैं ना, ये जो सरफेस पे ये लेयर होती है, इसकी थिकनेस जनरली होती है इस बिटुमिनस लेयर की 25 mm विलेज रोड में, राइट। अब आप ये मत कहिएगा कि सर 25 mm क्यों, 25 mm होती है, किसी जगह 20 mm लिखी हुई है। बिल्कुल लिखी हुई है। जो अभी जो मध्य प्रदेश कर रहा है वो 20 mm ही कर रहा है, और बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल जो कर रही है वो 25 mm कर रही है। 20 + 5, 20 mm इज द बिटुमिनस एंड 5 mm इज द सील कोट। सील कोट की कोई थिकनेस नहीं होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर को ये 25 mm करना ही पड़ जाता है यहाँ पे, राइट। तो आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये इंटायर इंग्रेडिएंट्स थे हमारे किसके, WVS के। सो दिस इज ए, यू नो व्हाट, विच अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, राइट। आप इसको वो करके पाउच करके अच्छे से आप इसको लिख लीजिए, राइट। गिरिए, मैंने थोड़ा डाउन कर दिया इसको, थोड़ा जूम कर देता हूँ, सो दैट इट विल बी क्लियर, अपीयरेंस विल बी वेरी क्लियर। अर्थ वर्क यहाँ तक लीजिए, इसको लीजिए, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओके।